گے تاکہ وقار صاحب میں بیچ میں مداخلت کروں گا. آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کیوں مانگے گے بار بار پیکیج جب صحیح. ملتا ہی نہیں؟ یہ ایک فضول میرے گورنمنٹ کو چھوڑیے آپ, کیونکہ آج تک جتنے بھی پیکیج ہم نے دیکھے کوئی پیکیج ملتا ہی نہیں ہے. اگر ملا ہوتا تو ابھی تک تو 2 مہینے لاک ڈاؤن کو ملا ہوا. لیکن اگر کشمیر کی ایکچوئل بات کریں, کشمیر کا 5 اگست سے لاک ڈاؤن میں ہے. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں حیا جاوید پی نیوز سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے یہاں پہ تجارت سے وابستہ طبقے اور یہاں انتظامیہ کے درمیان ایک تعطل سا پیدا ہو گیا ہے. دکاندار حضرات کی چاہت ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا کاروبار دوبارہ بحال کریں, جبکہ ابھی 3 دنوں سے یہاں پہ بات چیت کے باوجود بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. دکاندار حضرات جو ہے وہ اس آڑ میں بیٹھے ہیں کہ کب وہ اپنی دکانیں کھولے, اور انتظامیہ نے ابھی ایسی کوئی اجازت نہیں دی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بشیر احمد ناز صاحب, اس کے بعد میرے دائیں سائڈ سے بیٹھے ہیں محمد صادق بقال صاحب, بائیں سے بیٹھے ہیں صوفی محی الدین صاحب, اور ان کے بعد شاہد صاحب بیٹھے ہیں. یہ سبھی لوگ جو ہے بشیر ناز کے بغیر یہ کشمیر ٹریڈرز اور مینوفیکچررز فیڈریشن سے وابستہ ہے. ان سے ہم پورا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ تعطل کیوں پیدا ہوا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کاروباری سرگرمیاں پھر سے دوبارہ شروع کریں تو کس بنیاد پہ آپ کریں گے, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ بالکل یہاں پہ جان لیوا اب ثابت ہو رہا ہے. بقال صاحب یہ بتائیے, ان 2-3 دنوں میں کیا انتظامیہ اور آپ کے درمیان بات چیت ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ دیکھیے جاوید صاحب, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کیونکہ آپ لوگ پریس سے وابستہ ہے تو ساری باتیں آپ لوگوں کو تقریباً معلوم ہی ہوتی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم انتظامیہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے اس کو شروع کیا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ لاک ڈاؤن کی بات نہیں, پچھلے اگست سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. یہاں کا تاجر جو ہے ہر حال میں ہر صورت میں وہ پیچھے ہی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کو سامنے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جیسے کہ وہ کاروبار شروع کرے. ابھی جو یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اس نے ہماری بالکل کمر ہی توڑ ڈالی ہمارے تاجروں کی. اس لیے ہم نے انتظامیہ سے آن بہاف آف ٹریڈرز اپنی جو ہے ہمارے بات شروع کی تاکہ یہاں یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے. اصولی طور پہ اگر یہ دیکھا جائے تو اصولی طور پہ دونوں سائڈ سے اتفاق ہوا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا ہی ہے, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کچھ تجاویز دی ہے ہم کو, ہمارے ساتھ کچھ ڈسکشن ڈیلیبریشنز ہوئی کسی بات پہ, تو ہم نے بھی کچھ چیزیں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وہاں پہ بھی ٹریڈ باڈیز بیٹھی تھی ایکسیپٹ کی ہے. انہوں نے بھی ہماری کچھ باتوں کو ایکسیپٹ کیا کہ جیسے آلٹرنیٹیو ہم دکانیں کھولیں گے اور ایک دن میں ہم کچھ مخصوص کیٹیگریز کے دکانوں کو اناؤنس کر کے ان کو کھولیں گے تو دوسرے دن بند رہے گا, تو تیسرے دن اور کوئی کیٹیگری کے 2-4 آئٹم رکھنے والے دکان کھولیں گے. اس طرح ہماری یہ تجارت ہے اس کی ایک شروعات ہوگی. ایک خاموشی جو ہے, ایک گھٹن سی جو یہاں پہ ہمارے ٹریڈوں کو رہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو یہ بتائیے ابھی آخری نتیجہ کیا اخذ ہوا, کب سے شروع ہو رہا ہے, یا اس میں کون سی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی مارکیٹ بند ہے؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے جو کل کی میٹنگ تھی وہ بہت ہی امپارٹنٹ میٹنگ تھی. اسی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ لاک ڈاؤن کو اتفاقی طور پہ اصولی طور پہ ہم ختم کریں گے, لیکن کیونکہ اب گورنمنٹ کو اس کا یہ دیکھنا ہے کہ آرڈر ان کو نکالنا ہے کہ کب سے اس لاک ڈاؤن کو اٹھا رہے ہیں. ہمیں امید تھی کہ رات کو ہی وہ نوٹیفیکیشن نکالیں گے, لیکن آرڈر کل نہیں نکال سکے. ہو سکتا ہے پاسبلی آج ہو, اور مجھے لگتا ہے 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں ہم, یہ جو لاک ڈاؤن کھولنے کا جو آپ لوگوں کے ضلع انتظام ہے یا اسٹیٹ کا جو انتظام ہے ڈویژنل کمیشن لیول پہ جو آپ کی باتیں ہوئی ہے, اس میں سب سے ایک بڑی بات جو ہے جب مارکیٹ کو کھول دیا جائے, چاہے آپ نے بولا کہ یہ DC صاحب کی طرف سے آیا یا ایڈمنسٹریشن سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ٹریڈ کو بانٹ رہے ہیں,
پہلے ایک مطلب ایک دو دن کے لیے ایک ٹریڈ کو چالو کریں گے، دوسرے دن دوسری تیسری، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو یہ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ کا ویلو جو کسٹمر کی طرف سے ہے، کسٹمر میں بھی ہوں، کسٹمر آپ بھی ہیں، کسٹمر آپ کی فیملی ہے، کسٹمر سارے ہیں. یہ جو کسٹمر ہے یہ کیسے اس مارکیٹ میں پہنچے گا، کیونکہ ٹرانسپورٹ ہے نہیں، سب ان کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں. اس بارے میں آپ نے بات کی ہے کہ یہ کسٹمر کیسے دکان پہ پہنچے گا. نہیں، یہ تو خالی دکانیں نہیں کھل رہی، ٹرانسپورٹ بھی کھل رہا ہے. ہمارے کسٹمروں کو جیسے وہ آتے تھے میٹاڈوروں میں یا سومو گاڑیوں میں یا باقی جو ٹرانسپورٹ ہے اویلیبل ان کے لیے تھا، وہ برابر چلے گا. ہمارے پاس ہمارے کسٹمر پہنچ جائیں گے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ٹرانسپورٹ کل ٹریڈ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے چینل پہ ہی اس نے یہ بتایا ہے کہ پہلے سومو میں، سپوز ہم سومو کی بات کریں گے، 9 سواریاں بیٹھتی تھی یا 8 سواریاں بیٹھتی تھی، کہیں 10 بھی بیٹھتی تھی، تو ایک کرایہ ایک مخصوص تھا. اب چونکہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے کرایہ اس میں 5 لوگوں کو بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے جب کھلے گا، یا 4 لوگوں کی بات کھلے گی. نیچرلی کرایہ ڈبل ہو سکتا ہے. اگر کہیں پہ 100 روپے کا کرایہ تھا، اب اس کو 200 بن جائے گا یا 150 بن جائے گا. یہ جو عام کسٹمر ہے، مطلب ہم عام لوگ کے پیسے پہلے ہی 5 اگست سے پسا ہوا ہے. یہ لاک ڈاؤن ہمارا آج کا 2 مہینے کا لاک ڈاؤن تو پورے دنیا کو سامنے ہے، انڈیا کو سامنے ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہے. لیکن اگر کشمیر کی ایکچوئل بات کریں، کشمیر کا 5 اگست سے لاک ڈاؤن میں ہے، اور بیچ میں تو کھلا تھا. تو یہ جو آج کے یہ لوگ آپ کے جو کسٹمر ہے یا یہاں کی جو عوام ہے، تو اس پہ یہ ایک اور بوجھ بڑھے گا. تو اس کو کیسے دیکھیں؟ کیا یہی باتیں ہوئی، ان لوگوں کو کیسے راحت ملے گی؟ کیا یہ بھی باتیں آپ کے ساتھ ضلع ایڈمنسٹریشن سے ڈسکس ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب آپ 9 سواریوں کے بجائے کہیں کہ 4 سواریوں کو بٹھا دو آپ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ریٹ بڑھے گا. لیکن اب ریٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ یہاں کے انتظامیہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری دکان کل کو کھلے گی، جو ہمارے چیزوں پہ یا باقی چیزوں پہ پرنٹ ریٹ ہوگا، ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹیج ہم کم کریں اپنے کسٹمروں کو اپنی طرف لانے کے لیے یا باقی کسٹمروں کو. لیکن یہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی بیچارے آج تک ختم ہو گئے. جس کا مطلب یہ ہے، ہم ان سے بھی بات کریں کہ کیا مطلب. اچھا، بہترین. ہمارے ناز صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر گاڑی میں 9 پیسنجر بیٹھتے ہیں تو 9 پیسنجر کا مانیے 900 روپیہ بنتا ہے. آج اگر 4 بیٹھیں گے تو یہ 4 پیسنجر پہ 900 روپیہ لوڈ آ جائے گا. تو بہت اچھا سوال ہے یہ تو سرکار کی ایک جو ہمیں گائیڈ لائن آ رہی ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو، چاہے ہمارے دکان مارکیٹ اوپن کرنے سے ہو. جہاں تک ٹرانسپورٹ کا سوال ہے، ٹرانسپورٹ بھی یہاں پوری طرح متاثر ہو چکا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور اگست 19 سے بھی لے کے آج کے لاک ڈاؤن تک. ان کے لیے ایک راحت ہونی چاہیے الگ سے. ٹرانسپورٹروں کو میکسیمم ان کا جو بینک کا ہوتا ہے، ان کو فائنانس ہوتا ہے ان کی گاڑیوں کو، اس میں ان کو ریلیکسیشن ہونی چاہیے. بالکل 0% اس کو انٹرسٹ وغیرہ جو بھی ہوگا ان کا وہ پیکیج ان کو ہونا چاہیے. پلس مینٹیننس وغیرہ جو بھی ہوگا، یا ان کا جو رینیول ہوتا ہے پیپر کرنے کا، تو وہ سب لے کے ان کو ٹرانسپورٹروں کو وہ فیسلٹی دینی چاہیے. اور ایک پیکیج کی اشد ضرورت ہے، خاص کر ہمارے وادی کشمیر میں ایک بہترین پیکیج کی. تو ہمیں پیچھے بڑی امید تھی کہ ایک پیکیج کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے ٹریڈروں یا یہاں کے ٹرانسپورٹروں کے لیے کچھ خاص راحت نہیں ہے. یہاں پہ بقال صاحب نے یہ ایک اشارہ دیا ہے جو میں نے سمجھا ہے، شاید یہی بول رہے ہیں یہ کہ جب ٹریڈ کھلے گا، مطلب جس بھی ٹریڈ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، انہوں نے شاید یہ اشارہ دیا کہ ہم کسٹمر کو کچھ رعایت دیں گے، کچھ ڈسکاؤنٹ کریں گے جو بھی چیز آپ کے دکانوں سے یا آپ کے بزنس یونٹ سے لیں گے. کیا یہی آپ کا یہی مطلب ہے؟ السلام علیکم. میرا ماننا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے، جو سومو والے ہیں، ان کو ایک پیکیج ملنا چاہیے. ایک پیکیج کی اشد ضرورت ہے، اور ساتھ میں دکانداروں کو بھی پیکیج کی ضرورت ہے. تب یہ مسئلہ پورا ہوگا. ہم کیا دیں گے، ڈسکاؤنٹ دیں گے، وہ تو کرنا ہی ہے. اور ہم کو دکان میں خاص کر انتظام رکھنا ہے سوشل ڈسٹینس کا. وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو وتھ کورونا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو بیکر ہے کشمیر کے، وہ بڑے ایکٹیو ہے اس بارے میں، اور کافی اویئرنیس ہے ان کے پاس.
यहाँ की जो FFIC है पिछले 3-4 सालों से बहुत काम किया उन्होंने बेकर एसोसिएशन के साथ मिलजुल के। हमारे के जो बेकर है वो बहुत अवेयर है। आज की जो SOPs हमें आ रही है गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हमें पहले भी हम वो इम्प्लीमेंट करते थे। बिल्कुल शायद साहब मैं आपकी बात सही, मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। ये जो SOPs का मसला है या क्या हमें गाइडलाइंस क्या है वो दूसरी बात है। वो बात की बात है, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे वो अलग बात है। वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको बताएगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, वो अलग इशू है। इशू ये है कि जब ट्रेड खुलेगा, ये कस्टमर दुकान तक जब पहुंचेगा, उसको जो चीज लेनी है वो सारी चीजें जो देखो, ये मैं कहीं बड़गाम से आता हूँ, मुझे लाल चौक में कोई चीज खरीदनी या बटमालू में आ जाता हूँ, तो पहले मैंने एक बजट है, क्योंकि मैं भी खुद लॉकडाउन में हूँ। जैसे आप ट्रेड वाले फंसे हैं, मतलब आपका कारोबार बंद है, जो आपका कस्टमर है उसकी भी सेम पोजीशन है, वो उसकी मजदूरी बंद है, वो भी छोटा मोटा घर में काम करता है, वो बंद है। तो यही चीज में मैं यही जानना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को, हमें ये बताइए क्या ये चीजें डिस्कस हुई हैं या क्या ये डिस्कस करेंगे आपकी, ये जो कस्टमर आएगा इस पे पहले 100% उस पर चढ़ेगा ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ये एक बात है। दूसरी बात है, जब आपके दुकान पे आएगा, मैं यही चाहता हूँ, या आपके बेकरी शॉप है, जो भी शॉप है, क्या आप ट्रेड यूनियन जो आपकी है, जो आपके एसोसिएशन है, आपने ये फैसला किया है कि हम अपनी तरफ से उसके 5%, 2%, 10%, 20% देंगे? रही राहत की बात, ये गवर्नमेंट को छोड़िए आप, क्योंकि आज तक जितने भी पैकेज हमने देखे, कोई पैकेज मिलता ही नहीं है। अगर मिला होता तो अभी तक तो 2 महीने लॉकडाउन को मिला हुआ, नहीं मिला है। जब वो करेंगे वो तो सबों को होगा। अभी जो इमीडिएट क्या एसोसिएशन ने सोचा है आज बारे में कि क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन वैसे तो एंकर मुझे टाइम नहीं लेना चाहिए, मगर एक बात मैं बताऊंगा, ये जो कोरोना है इसका इलाज है नहीं। अगर हम लॉकडाउन, क्योंकि मैं इंतजामिया से भी ये बात कहूंगा कि हम लॉकडाउन में अब नहीं रह सकते, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, जैसा भी है, कितना भी खतरनाक होगा, लेकिन जीना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से नहीं, खुदा ना करे, हम शायद फाका कशी से और बेकारी से मर जाएंगे। लिहाजा हमें कोरोना के साथ जी के ही एहतियातन इसके साथ जीना पड़ेगा। तो क्या सोचा है आपने मिल के उसका जरा? ना साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि आपने पूरे मजलूम कौम की रहनुमाई की, यह ऐसा सवाल आपने पूछा है। देखिए, आपको भी पता होगा, आप इस फील्ड में हैं, जब ये लॉकडाउन चल रहा था या इसके बगैर भी, यहाँ की जो लोकल NGOs है उन्होंने भी बहुत काम किया। किसी को फाका देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक उनका हाथ पहुँचा, और हम इसी समाज से हैं, हम भी एक हिस्सा है, वो एनजीओज भी हमारी से, ठीक, जब आप ट्रेड वाले, जब आप उनको मदद करते हैं, वही है कि मैं खुद वाबस्ता एक NGO से हूँ, खदमत खल फाउंडेशन से हूँ, बटमालू से। तो मैं ये बात आपको तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, हम भी उसी समाज से हैं। और हमारे सदर साहब जो है मोहम्मद सादिक बकाल साहब ने शायद इसी जगह से एक NGO मानिए या कोई खदमत खलक का काम ऑपरेट इन 2-2.5 महीनों ने किया था। बज़रिए फ़ोन और सोशल मीडिया हम भी देख रहे थे। इन्होंने भी फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किए थे। अपनी अपनी जगह यहाँ पे सबों ने काम किया। रहा सवाल कि जब कस्टमर हमारे पास आएगा, ऑलरेडी उसके ऊपर इतना लोड होगा कि वो शॉपिंग कैसे करेगा। तो हमारा जो ट्रेड है हमेशा, चाहे यहाँ पे रमज़ान का महीना आए, चाहे कोई भी नागहानी आफत या टर्माइल चला, वो कभी भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। जब भी यहाँ पे हमारे, आपने देखा होगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब अक्सर माह रमज़ान से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, बाज़ाब्ता उसमें वो ऐलान करते हैं कि जो भी ये ज़रूरी चीज़ें हमें जो रमज़ान के महीने में या ईद पे दरकार होती है, उसमें बिल्कुल वो अपने ताजरों से ये चाहते हैं, और उनको ये अपनी तरफ से कहते भी है कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल रिलैक्सेशन दीजिए इस माह मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे सदर साहब ने भी कहा कि हम अपनी तरफ से जितना ट्रेडरों की तरफ से हो सके, हम अपने कस्टमर को वो राहत देंगे कि उसको भी ये न लगे कि मैं लॉकडाउन से निकल के इससे आपका कहने का ये मतलब है कि नाज़रीन को जब लॉकडाउन खुलेगा कि यहाँ की जो बिजनेस सर्कल्स हैं उनकी तरफ से किसी न किसी किस्म का राहत, जिसको हम डिस्काउंट
या कंसेशन कह सकते हैं आएगा, ठीक, अच्छी बात है। मैं आखिरी सवाल बकल साहब से करूँगा कि वो ये कि बहुत ज़रूरत है कि एहतियात की भी बहुत ज़रूरत है। ये एक दो दहाई तलवार है जो हमारी गर्दन पे खड़ी है, एक जानब से मार्केट खोलना और दूसरी जानब से ये अंदेशा कि कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है। तो फैसला तो लेना ही पड़ेगा हमने किसी भी हालत में। बकल साहब ये बताइए कि जब आपके दुकान में कस्टमर आएगा तो आपने क्या सोचा है, कौन से एहतियात आप बरत लेंगे जब कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा? क्या कोई ऐसा कुछ इंतज़ाम रखा है? कोई कस्टमर जो है वो मास्क के बगैर भी आ सकता है, बिना हाथ धोए भी आ सकता है? क्या ऐसे इकदाम आपने उठाए हैं? देखिए, ये भी बहुत एक ज़रूरी सवाल है। जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो दुकानदार दुकान खोलता है कल को, उसके पास क्या लवाजमात रखे उसने ताकि कोरोना के वायरस उन तक ना पहुंचे। आपके कहने का यही मतलब है। देखिए, मैं अपने तमाम दुकानदारों से, ख़ास कर अपने जो सदूर साहिबा हमारे प्रेसिडेंट हमारे मार्केट में, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने दुकानदारों को इस चीज़ की तरबियत दे। सबसे पहले मास्क की बात है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। नंबर 2, सैनिटाइज़र दुकान में होना चाहिए। और उसके बाद जो भी कस्टमर आता है उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। बल्कि मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पर 200-500 रुपए के मास्क अपने पास रखें, ताकि हम देखें कि किसी कस्टमर ने मास्क नहीं पहना हो, हम उसको वो गिफ्ट के तौर पर पेश करेंगे ताकि वो मास्क पहने। शायद वो दूसरी दफ़ा हम उसे बार बार देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे उसी मास्क का एहसास होगा कि मुझे मार्केट में कैसे निकलना है। और सैनिटाइज़र उनको इस्तेमाल करवाना है जो हमारे कस्टमर है। और सोशल डिस्टेंस की वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमने आज तक, चाहे WHO वालों के हिदायत हो कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। आज पहले 1 मीटर की सोशल डिस्टेंस, अब 2 मीटर की, हम इन बिटवीन में 1.5 मीटर की करेंगे इसको, ताकि 1.5 मीटर कस्टमर और हमारे दुकानदार के दरमियान जो फासला हो वो 1.5 मीटर का हो। और सैनिटाइज दुकानदार को चाहिए कि अपने कोलिन है या बाकी चीज़ें हैं जो जर्म्स को ख़त्म करते, स्प्रे करे अपने दुकान को। और इससे पहले कि मार्केट कर को खुले, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि पूरे श्रीनगर को सैनिटाइज किया जाए, हर मार्केट को सैनिटाइज किया जाए, ताकि दूसरे दिन जब हम अपनी मार्केटें खोलेंगे तो अपने छोटे हथियारों से अपने दुकानों को सैनिटाइज करेंगे और अपने कस्टमरों को हिदायत करेंगे कि उनको कैसे चलना है। हम गुजारिश ये भी करते हैं अपने प्रेसिडेंट साहिबान से, एक पोस्टर बनवाइए जिस पे कस्टमर के लिए नोट एक लिखिए, उन्हें क्या क्या चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए हमारी दुकान तक पहुंचने के लिए। और हमारे दुकान को जो हमारे दुकानदार होंगे, जो हमारे बिजनेसमैन होंगे, उनको क्या करना है, किस तरीके से इस कोरोना को बिटवीन कस्टमर एंड दुकानदार के दरमियान ये हामिल ना हो जाए, उसको रोकना है। बकल साहब एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा पूरे मुल्क में चिकन का रेट एकदम नीचे आ गया। 40 रुपये दिल्ली में, मुंबई में, बाकी जगहों पे बेचा गया। उसके बाद ईद आ गई और एकदम ये चिकन 180-200 तक पहुंच गया। जब उन जो यहाँ पे चिकन का कारोबार करते हैं, जब उनसे हमने ये बात की तो उन्होंने बोला 125 रुपया हमें अब लखनपुर से ही, उधर जहां से आता है पंजाब से, उधर ही 125, उसके बाद 30 रुपए के करीब उस पर खर्चा आता है, यानी 155 तक उन्होंने बताया वो यहाँ श्रीनगर पहुंचता है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट बाकी अखराजात, ठीक है, फीड वीड का मसला उन्होंने बोला, तभी हम 180 भेज रहे हैं कि वो 10-15 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। वो रेट उनके हिसाब से जेन्युइन था जो जिसमें। अब यहां पे भी एक सवाल जो आपके ट्रेड से, क्योंकि उन्होंने ये रीजन दिया था कि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां माल कम बनाती है और डिमांड ज्यादा होगी, रेट बढ़ जाता है। ठीक है, आपको भी जो आपके फैक्ट्री में जैसे बेकरी बनती है, आटा उसके लिए जरूरत है, दूसरे आइटम में जरूरत है, या आपका कुछ दूसरा ट्रेड है, कल जब आप दुकान खोलेंगे और नया माल मार्केट से लाएंगे, दिल्ली से लाना, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में ऐसा इस किस्म की चीज नहीं बनते हैं। अगर ये रेट
इसी चिकन की तरह या मीट की तरह हो गया, क्योंकि 550 रुपये हमारा नॉर्मली तो 450 रुपये हमारा गोश्त का कीमत था, अब 700 650 बेच रहे हैं। और आपने देखा, आपने भी खरीदा होगा और मैंने भी खरीदना पड़ा मुझे, क्योंकि जब मार्केट में इसी रेट पे मिला तो मुझे भी खरीदना पड़ा। ये भी एक आवाम में एक खदशा है कि जब ये दुकान खोलेंगे शायद जो चीजें हम पहले इस रेट पे लेते थे, अब रेट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से माल बाहर से आ रहा है, शायद रेटें बढ़ेंगी। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपने सवाल किया, ये इंतजामिया को देखना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे है यहाँ पे इंतजामिया की है। जब से लॉकडाउन हुआ है या जब से हम इसमें फंसे हुए पिछले 10 महीने से, कहाँ देखा आपने कि इंतजामिया की तरफ से सब्जी वालों को, मीट वालों को या बाकी, जैसे आपने अभी चिकन की बात की, कहीं पे देखा आपने कोई चेकिंग हो रही है? इंतजामिया दावा करते हैं हमने टीमें बनाए, हालांकि हकीकत ये है, हम इंतजामिया को बताएं, इंतजामिया इतने फाल यहाँ पे नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना। हमें अब इंतजामिया को छोड़ दो। मैं पहले ही मैंने बोला, क्योंकि शायद साहब ने कहा, इन्होंने बोला राहत की बात की ना, मैंने बोला पैकेज को छोड़ दो। बार बार ये पैकेज हम क्यों मांगेंगे, बार बार पैकेज जब मिलता ही नहीं। ये एक फजूल, मेरे ख्याल में, जहां तक बीइंग ए कश्मीरी, जर्नलिज्म को छोड़ दो। मैं भी कश्मीरी हूं, मुझे भी वही जरूरत है जो आम दूसरे लोगों को है, क्योंकि मैं भी इसी में हूं। मुझे नहीं लगता ये जो हम बार बार पैकेज की बात करते हैं कि कभी नहीं हुआ है पैकेज। सही बात। मैं आज यहाँ पे ये भी खुल के बताऊंगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुपानी नहीं चाहिए। जब 2014 का फ्लड आया, जो अनाउंसमेंट होगी कि क्या देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दिया गया। नहीं। इमीडिएटली क्या मिला? आज भी जब यहाँ पे कोविड के मसले में इंतजामिया ने, सरकारी इंतजामिया ने भी पैकेट्स बनाए, हमने बड़ी तशहीर की, वो पैकेट हमें दिखाए गए, और बाद में किस तरह वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए जावेद साहब को पता है, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो पे हमें काम करता है। किस तरह वो पैकेट, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा यही कहना है कि हमें बहसियत समाज का एक अहम हिस्सा होने के नाते हम इस चीज को कैसे हम इसको करेंगे ताकि हम इस कोरोना में जी सके, नॉर्मली लाइफ जी सके। वो बात मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह आप ये ट्रेड को चलाएंगे, इन सारी चीजों। देखिए, ट्रेड को हमने हर सूरत में चलाना ही चलाना, कल को कोरोना नहीं होगा फिर भी चलाना है। लेकिन एक बात है कि हम ब्लैक मार्केटिंग की तरफ तवज्जो ना दे, उसकी तरफ हम ना जाए। हम अपने ही लोगों का आपका वही, आपकी जो एसोसिएशन है, मैं यही जानना चाहता हूं कि जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपके ट्रेड, जो जितने बाड़ियां हैं, क्या आप इसको कंट्रोल, आप क्यों, आपसे मैं बकाल साहब से पूछूंगा, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते हो? देखिए, ये एक ट्रेड से वाबस्ता है, ये दूसरे, आप तीसरे, और आप इनके प्रेसिडेंट हैं। बहुत अच्छी बात। ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? बहुत अच्छी बात कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे पिछले दिनों जब लॉकडाउन चल रहा है, अब भी चल रहा है, यहाँ पे मार्केट में क्या है, पुलिस निकलती है, दुकानदारों को दुकानें बंद करवाती है। एक साइड से पुलिस निकल जाती है, बंद कराते वो दूसरे साइड पे पहुंच जाती है, तब तक पहला वाला साइड फिर खुलना शुरू हो जाता है। यह हमारी फितरत है। हमें अगर एहसास अंदर पैदा होगा, देखिए, अगर हम, एक चीज है इंसान के अंदर, जमीर सबसे बड़ी, उसकी आवाज जो है ना ऊपर तक पहुंचती है, अल्लाह ताला तक पहुंचती है। लेकिन ज़मीर की बात है कि जो ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ हो रही है, लोग मर रहे हैं, उस पर भी हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा हुआ है कि लोग मैं बकाल साहब, आप सब लोगों को एक तजवीज़ दे दूं। हाँ जी, मेरी तजवीज़ है, आप जो ट्रेडर्स बॉडी जो आपकी है सारे, आप एक टास्क फोर्स बनाए। मेरे टास्क फोर्स का ये मतलब नहीं कि उनको गांधे जल उनके हाथ में छड़े बड़े, वो नहीं। बिल्कुल। मतलब एक काम करने का एक ग्रुप आप बनाए, जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट है वगैरह, एक साथ में एक मिल बैठ के एक ग्रुप बना लीजिए, और उनके पास एक नंबर रख लीजिए, टेलीफोन कांटेक्ट नंबर, उसको पब्लिश कीजिए। अगर मैं दुकानदार मैं दुकान के पास जाता हूं, मैं सामान लेने, मुझे लगता है ये महंगा है, मेरे पास एक कांटेक्ट नंबर आप लोगों का होना चाहिए, मैं आपको फोन घुमाऊंगा, मैं पुलिस को नहीं, क्योंकि मैं जब पुलिस को घुमाऊंगा मुझे पता है फिर क्या होगा, क्योंकि वो मैं टीवी पे नहीं बोलना, वो आम पब्लिक को पता है। मैं जब डीसी को फोन घुमाऊंगा तो वहां पे कागजों में 2 साल लगेंगे कि तब भी उसका हल नहीं। मैं आपके ट्रेड को, आपके बॉडी को, आपके टास्क फोर्स को, मेरे ये सुविधा होनी चाहिए थी आपकी तरफ। मैं फोन लगाता हूं कि जनाब
आपकी दुकानदार फलानी जगह पे फलानी गली में ये दुकान है, ये माल बेचता है, ये मुझे महंगा बेच रहा है, आपकी नोटिस में आएगा। आप जब मीटिंग करोगे, आपकी जो ये दुकानदार एसोसिएशन है या जिस भी ट्रेड है वो क्यों नहीं एक्शन लेगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? मैं आपने कहा टास्क फोर्स की बात है कि हम कोई एनफोर्स एजेंसी तो है ही नहीं कि हम आपकी दुकान पे आए कि आपने जी इसको महंगा दे दिया। हाँ, इसके लिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट ये है कि यही बात अगर हम इंतजामिया डीसी से बात करेंगे ताकि बकाल साहब, मैं बीच में मुदाखलत करूंगा। आप ये गलत कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी आप सारी की सारी जिम्मेवारी इंतजामिया की है। आप बहसती सदर जो है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के, आपके मातहत मार्केट के सारे जो सदर साहिबान है वो आपके मातहत है। ये सदर साहिबान सभी उन दुकानदारों को जानते हैं, इनको पूरा पता है इनका दुकानदार कहाँ पे है। शिकायत आपके पास आएगी, आप सदर को इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी मार्केट में ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल आसानी से इस पे काबू पा सकते हैं। ये इंतजामिया की आप बात मत कीजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी नहीं। बात सुनिए, मैंने इंतजामिया को नहीं पकड़ा, मैंने इंतजामिया की तरफ न कोई उंगली उठाई, न मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कल को ये आदमी मेरी मतलब दुकानदारी कर रहा है और ये कल को ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, हम इसके प्रेसिडेंट को करें। हर जगह ब्लैक शिप्स होते हैं, हर कम्युनिटी में ब्लैक शिप्स होते हैं, गलत लोग होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिससे बाकी जो लोग हैं बदनाम हो जाते हैं उस कम्युनिटी के। मगर अगर आपको वाकई इस टास्क फोर्स को पावरफुल बनाना है, फिर आपके पास कुछ होना चाहिए ऐसा मैकेनिज्म कि अगर ये नहीं मानता है, कल को ये एरोगेंसी करता है। हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे ही दुकान मेरी बात सुनिए नाज साहब, मेरी बात सुनिए। हमारे ही दुकानदार को बहुत सारे लोगों ने मालिक मकानों ने बेदखल कर दिया, उनके साथ किरायानामा करके भी। फिर क्या हुआ? हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, या बाकी लोगों ने क्या किया? अगर इस पर स्ट्रिक्ट रहना है, ये दो चीजें हैं, लाजमी मजलूम है इंतजामिया और अवाम। जब तक ये दोनों मिल के नहीं चलेंगे, किसी चीज को आप रोक नहीं सकते हैं। आप तभी रोक सकते हो जब मैं कहीं जाऊं, मुझे हो सकता है जरूरत पड़े, हो सकता है वहां पे ऐसी कोई बात हो कि मेरे ऊपर हमला हो जाए, मुझे कौन बचाएगा उस वक्त? मुझे तो कोई ऐसा हो जो एनफोर्स हो, जिसके पास ये पावर हो, वो किसी चीज को रोक सके, किसी का गरेबानी, किसी का बाजू पकड़ सके। मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकता हूं, मेरे अंदर इतने मतलब है ही नहीं मेरे पावर्स इतने कि मैं किसी को हाथ लगाऊं। अगर मैंने हाथ लगाया तो नेक्स्ट एक ही घंटे में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। हम तवक्का करते हैं कि कुछ बातें ऐसी है जो हम आवाम तक पहुंचाना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि आप तक वो बातें पहुंची होंगी कि क्या कुछ हम चाहते थे कि आवाम तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बकाल साहब अभी या शाहिद साहब या सोफी साहब हमारे साथ बैठे थे, ये बात वाज़ेह हो गई कि इंशाल्लाह चंद ही दिनों में यहाँ पे मार्केट खुल जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। हम शुक्रिया करेंगे, नाज साहब बैठे थे यहाँ पे, उनका शुक्रिया करेंगे। बकाल साहब बैठे थे, सोफी साहब बैठे हैं, शाहिद साहब बैठे हैं, हम इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। दीजिए इजाज़त पी न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम।